नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः कृपावलियुतनिदाता। प्रवचन सार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित प्रवचन सार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित प्रवचन साરની ટીકા તત્વ પ્રદીપિકા એનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં 66મી ગાથાનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। આચાર્ય ભગવાનની 66મી ગાથા, તેનો અન્વયાર્થ, ટીકા, ભાવાર્થ અને પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ 66મી ગાથા ઉપર આપેલ પ્રવચનના કેટલાક અંશ કર્યા છે। સેશન આજે લઈશું અને તે પછીથી 67મી ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવે જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે લઈશું। તો આપણે પહેલા 67મી ગાથા લઈએ છીએ। 67મી ગાથાના ઉपोद्घातમાં કહે છે કે હવે આત્મા સ્વયંમેવ સુખ પરિણામની શક્તિવાળો હોવાથી વિષયોનું અકિંચિતકરપણું પ્રકાશે છે। વિષયોનું અકિંચિતકરપણું એટલે વિષયો એને કાંઈ કરતા નથી, સ્વયં જ પોતે સુખના પરિણામ કરે છે, સુખ પરિણામની શક્તિવાળો છે। આત્મા સ્વયંમેવ સુખ પરિણામની શક્તિવાળો હોવાથી વિષયનું અકિંચિતકરપણું પ્રકાશે છે। તો ગાથા 67 આપણે સંસ્કૃતમાં લઈએ। तिमिरहरा यदि वृष्टिर्जनस्य दीपेन नास्ति कर्तव्यं तथा सौख्यं स्वयमात्मा विषयाः किं तन्न कुर्वन्ति। गुजरातीમાં ગાથા છે, જો દ્રષ્ટિ પ્રાણીની તિમિરહર તો કાર્ય છે નહીં દીપથી। જ્યાં જીવ સ્વયં સુખ પરિણમે વિષયો કરે છે શું કહી। જીવ પોતે જ સુખના ભાવે પરિણમે છે, સુખ રૂપે પરિણમે છે, તો એમાં વિષયો શું કરે, વિષયો કાંઈ કરતા નથી। 67મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે यदि जनस्य दृष्टिः तिमिरहरा, जो प्राणीनी दृष्टि तिमिर नाशक होय तो, अंधकारनो नाश करनार तिमिर नाशक होय तो दीपेन नास्ति कर्तव्यम, तो दीवाथी कांई प्रयोजन नथी, अर्थात दीवो कांई करतो नथी। जो प्राणीनी दृष्टि तिमिर नाशक होय तो दीवाथी कांई प्रयोजन नथी, अर्थात दीवो कांई करतो नथी। આપણે જાણીએ છીએ કે નિશાચર એવા પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ જે રાત્રિના અંધકારમાં જોઈ શકે છે, એમને કોઈ બીજા પ્રકાશની જરૂર હોતી નથી। આગળ કહે છે કે તથા આત્મા સ્વયં સૌખ્યમ તત્ર વિષયા કિમ કુર્વંતિ। તેમ જ્યાં આત્મા સ્વયં સુખરૂપ પરિણમે છે ત્યાં વિષયો શું કરે છે, એટલે કે ઇન્દ્રિયોના વિષયો એને કાંઈ સુખ આપતા નથી। સુખ તો એ પોતે પોતામાંથી પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે કે આત્મા સ્વયં સુખ રૂપે પરિણમે છે, ત્યાં વિષયોનું કાંઈ મહત્વ રહેતું નથી, વિષયો કાંઈ એને સુખરૂપ થતા નથી, ઉલટા વિષયો તો એને દુઃખરૂપ થાય છે। ટીકામાં કહે છે કે જેમ કોઈ નિશાચરોના નેત્રો સ્વયંમેવ અંધકારને નષ્ટ કરવાની શક્તિવાળા હોવાથી, નિશાચર એટલે રાત્રે જે ચરે છે તે, રાત્રે ફરનારા ઘુવડ, સર્પ, ભૂત વગેરે નિશાચરોના નેત્રો સ્વયંમેવ અંધકારને નષ્ટ કરવાની શક્તિવાળા હોવાથી, એટલે કે અંધકારમાં પણ એ જોઈ શકે એમ છે। તો અંધકારને દૂર કરવાના સ્વભાવવાળા દીપક પ્રકાશ આદિથી કાંઈ પ્રયોજન નથી, એમને પછી કોઈ પ્રકાશનું પ્રયોજન રહેતું નથી। અર્થાત દીવા
વગેરેનો પ્રકાશ કાંઈ કરતો નથી. તેમ જો કે અજ્ઞાનીઓ વિષયો સુખના સાધન છે એવી બુદ્ધિ વડે વિષયોનો ફોગટ અધ્યાસ એટલે આશ્રય કરે છે, તો પણ સંસારમાં કે મુક્તિમાં સ્વયંમેવ સુખપણે પરિણમતા આ આત્માને વિષયો શું કરે છે? કાંઈ કરતા નથી. ભલે અજ્ઞાની એમ માને કે વિષય તો સુખના સાધન છે એવી એની બુદ્ધિ હોય, પણ એ તો એની બુદ્ધિ છે, એની માન્યતા છે. ખરેખર એમ વસ્તુનું સ્વરૂપ નથી. એવી બુદ્ધિ વડે એ વિષયોનો ફોગટ નક્કામાનો અધ્યાસ કરે છે, એમાં જ રોકાઈ રહે છે. ખરેખર એ વિષયો એને સુખનું કારણ નથી. અને કે છે એવું કરે છે તો પણ સંસારમાં કે મુક્તિમાં સંસાર પર્યાય છે ત્યારે પણ સુખનું કારણ તો પોતાનું સ્વરૂપ જ છે. અને મુક્ત દશામાં તો એ પૂર્ણ સુખની દશાને પ્રાપ્ત કરે છે, તો એમાં તો એ પોતાના સ્વરૂપમાંથી જ એને પૂર્ણ સુખની દશા પ્રાપ્ત થઈ છે. એટલે આ વિષયો આત્માને કાંઈ પણ કરતા નથી. ભાવાર્થમાં કહે છે કે સંસારમાં કે મોક્ષમાં આત્મા પોતાની મેળે જ સુખરૂપ પરિણમે છે. તેમાં વિષયો અકિંચિત કરશે, અર્થાંત કાંઈ કરતા નથી. અજ્ઞાનીઓ વિષયોને સુખના કારણ માનીને નક્કામાં તેમને અવલંબે છે. બહુ સરસ આંખ ઉઘાડી નાખે એવો આ શ્લોક કયો. આ ગાથાની અંદર બહુ સરસ વાત મૂકી દીધી કે સુખનું કારણ સ્વરૂપને વિશે આત્મામાં પડ્યું છે, અને એ વખતે એ સંસાર પર્યાયમાં હોય કે સિદ્ધની પર્યાયમાં હોય, ગમે તે પર્યાયમાં હોય, છતાંય સુખ તો એને સ્વરૂપમાંથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. તો પછી જે ઇન્દ્રિયોના વિષયો એમાં એ સુખની કલ્પના કરી અને નકામાનો સમય વેડફે છે અને ભવના ભ્રમણ કરે છે, એ કાંઈ ઉચિત નથી. એ વાત અહીંયા તો સમજાવી દીધી છે. તો 66મી ગાથાનો જે વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવ કર્યા છે ત્યાંથી આપણે અનુસંધાન પ્રાપ્ત કરી અને શરૂઆત કરીએ છીએ. 66મી ગાથામાં તો એ વાત આવી કે એકાંતે અર્થાંત નિયમથી સ્વર્ગમાં પણ દેહ શરીર એ દેહી એટલે આત્મા સુખ કરતો નથી, પરંતુ વિષયોના વશે સુખ અથવા દુઃખ રૂપ સ્વયં આત્મા થાય છે. એ વાત ત્યાં કરવામાં આવી. તો પૂજ્ય ગુરુદેવનું પ્રવચન આપણે સાંભળીએ. 66મી ગાથા ઉપર જ્યાંથી વિસ્તાર બાકી છે ત્યાંથી આપણે લઈએ છીએ. પ્રવચન સુધા ભાગ 3, એના પાના નંબર 186 ઉપર અહીંયા ત્રીજા પેરેગ્રાફથી ગુરુદેવ આગળ સમજાવે છે. એક ઉદાહરણની વાત લઈ અને ગુરુદેવ વાત આગળ સમજાવી રહ્યા છે કે અમરેલી ગામના એક જજ હતા, ત્યાંથી વાત શરૂ કરી અને ગુરુદેવ વિસ્તાર કરે છે. અમરેલી નો જજ હતો એક. અમરેલી જજ હતો, જજ. અમે ત્યાં ગયા હતા ત્યારે બધા શેઠી આવ્યા હતા. રામજી અનુસાર કરોડોપતિ એમાં એક હતા આપણા કેવા બાબરાનો નર્મરામ વકીલ, મોટો વકીલ હતો બાબરાનો. એમાં અમરેલી સાંભળવા આવેલા તે જજ પાસે એને તિથિ હશે કે આજ મેં નહીં આવી શકું. નર્મરામ કે जज ने आज नहीं आऊं महाराज ना व्याख्यान में कि क्या महाराज जज के वो उसकी लाकड़ी फिरते पैसा मिले ही जज पास ऐसी बात चली है. हाँ, एक लकड़ी बोकड़ी तो हाथ में पसीना वो कारण है, तो इसमें लकड़ी में कुछ है नहीं, आत्मा में है. अफ्रीका पर पगी गई भाई के ये हार्ड घर है तो पैसा वाला लाखों होती, कोई 50-50 लाख 8-8 लाख.
आपने प्रेमचंदભાઈ આખી જિંદગી રહ્યા પ્રેમચંદભાઈ ના બહેનો દીકરીઓ નથી કેટલી એટલે પૈસા કે નહીં પૈસા એ તો પૂर्ण હોય तो आते उसमें आया क्या धन के काम से आते ऐसा कोई है नहीं हाँ तो परमात्मा ही फरमाते हैं है 66 यहाँ यह सिद्धांत है कि भले ही दिव्य विक्रियता का प्राप्त हो विक्री शरीर स्वर्ग का मिले तो भी ये शरीर सुख का कारण सिद्धांत देना है सर्वार्थ सिद्ध में 33 सागर की थी देव की संकीति 33 सागर एक सागर में 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम एक पलना असंख्य भाग में असंख्य बज बरस भगवान का कथन है ये सर्वासिद्ध के 33 सागर शुद्धि चर्चा करते हैं कारण कि उसको आहार नहीं पानी नहीं स्त्री नहीं व्यापार धंधो कुछ नहीं 33 सागर एक अवतारी एक भोग करतारी है यहाँ से निकलकर मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाला है सर्वासिद्धि पर वो शरीर सुख का कारण नहीं हम कहते हैं संकीर्ति है तो आत्मा का सुख का कारण है इसको आत्मा में दृष्टि पड़ी है ना आत्मा का आश्रय है तो आनंद है शरीर नहीं इंद्रिय का सुख में भी शरीर कारण नहीं है यह सिद्धांत है भले ही दिव्य विक्रीता प्राप्त हो तथापि शरीर सुख नहीं दे सकता उसे भस्म रखता है बदी ये कोई सुख का कारण नहीं हम कहते हैं रोगत बहुत रखते हैं भस्म ना रूके कारण दुखे हम कहते हैं अनिष्ट मानकर अप्रीति करते हैं वो दुख का कारण है शरीर नहीं धर्मात्मा को कोई वक्त देव ले जाए समुद्र में मुनि हो समुद्र में ले जाए ऊपर से पार नाखे तो अंदर में शरीर से भिन्न आत्मा का ध्यान करते आनंद है जहाँ से भी केवल ज्ञान पाकर मोक्ष हो जाता है हाँ तो कहते हैं कि उदारिक शरीर तो सुख का कारण नहीं पर विकृत शरीर इंद्रों को मिलते हैं तो सुख का कारण है कि नहीं ये भी कारण है नहीं तो प्रभु का मार्ग वीरनो मार्ग से सुरानो कायरना नहीं काम ત્યાં હિજડા જેવા કાયરના કામ નહીં ત્યાં तो वीरनो मार्ग त्रण लोकनो नाथ तीर्थंकर अनंत थया ने वर्तमान 20 तीर्थंकर बिराजते हैं महाविधि में लाखों केवड़ी बिराजते हैं महाविधि क्षेत्र में साक्षात बिराजते हैं उसकी आवाणी है जिसने आत्मा स्वयं ही इष्ट अथवा अनिष्ट है इष्ट अनिष्ट विषयों के वश से विषयना वश में इस विषयना वश में इष्ट विषय में वश राग अनिष्ट विषय न विषय दुख ये सुख अथवा दुख रूप स्वयं होता है शरीर नहीं इष्ट अनिष्ट विषय में वश होकर अज्ञानी सुख दुख की कल्पना अपने से करता है शरीर कारण उसमें है निरोगता शरीर मिले तो सुखी है धूड़ में है नहीं है અને સરોગ શરીર रहते दुखे धूड़ी नहीं एक की इष्ट अनिष्ट विषय में प्रीति अप्रीति करते हैं ये कारण से सुख दुख की कल्पना होती है शरीर कारण कुछ है बहुत सरस श्लोक है
आत्मा का सुख की तो क्या बात करना, पर इंद्रिय का सुख में शरीर कारण नहीं है कहते हैं। ये धूड़ है शरीर क्या जाते मेरा, पैरों सूखते जाते मेरा, अज्ञानी मानते हैं निरोग थई, बीजू सुख घेर चार दीकरा, तीजो सुख सुकुड़नी नार, चौथो सुख कोठिए जार, अनाज वगैरह एम दुनिया माने अज्ञानी। એમ કહેતે કે નહીં, ખબર છે કે નહીં? અહીં તો બધી ઘણી હવા તો અનુભવ કર્યો. 17 વર્ષની ઉંમરથી આ બધું સંસારને ભિન્ન ભિન્ન રીતે બધું જોઈ બહુ છું. 72 વર્ષથી આ અભ્યાસ છે. अरे दुनिया क्या मानते हैं, कहीं मार मार गिर गया है। अज्ञानी विक्री का शरीर को भी सुख रूप नहीं है, इसलिए आत्मा स्वयं ही, बस कर्म ने कारणे नहीं, शरीर ने कारणे नहीं। भाई कर्म ऐसा है तो स्वयं ईश्वर निष्ठ में बुद्धि होती है, ऐसा नहीं। कर्म को छूते नहीं भगवान आत्मा, शरीर को छूते नहीं, कर्म तो सूक्ष्म उसको भी छूते नहीं। आत्मा स्वयं ही ईश्वर अथवा अनिश्वर विषयों के वश, विषयों के वश, सुख अथवा दुख रूप स्वयं ही होता है। सुख ने दुख स्वयं अपनी प्रणति में करता, कर्म के कारण से नहीं, शरीर के कारण से नहीं, पैसा के कारण से नहीं। रोग आया वो कारण से दुख की कल्पना हुई, ऐसे नहीं। शरीर में घा पड़े वो कारण से क्या दुख की परिणति उत्पन्न होती है, ऐसी नहीं। एम कहते हैं अपनी परिणति में दुख का परिणाम करते हैं तो उसमें शरीर बिल्कुल कारण है नहीं। આવી વાતો છે। भावार्थ, शरीर सुख दुख नहीं देता है। शरीर जड़ धूड़ है, या तो माटी है, सुख दुख कल्पना का सुख दुख नहीं देते हैं। देवों का उत्तम विक्रिक शरीर सुख का कारण नहीं है। मनुष्य ने त्रियंत को तो उदारी शरीर है, देव और नारकी को विक्री शरीर है, तो नारकी में दुख है तो विक्री शरीर के कारण से नहीं, स्वर्ग में सुख है तो विक्री शरीर के कारण से नहीं। कल्पना प्रणति करते हैं, मैंने ठीक है मैंने अठीक है, ऐसी कल्पना प्रणते हैं, ये प्रणति कारण है। अशुद्ध स्वभाव मानते हैं वो कारण है। शुद्ध स्वभाव पर की दृष्टि नहीं, अशुद्ध भाव पर दृष्टि है। वो अशुद्ध भाव के कारण से सुख दुख की कल्पना करते हैं, शरीर के कारण से नहीं। प्रभु नो मार्ग आसे त्रिलोकना नाथ जिनेश्वर देव एम फरमाते हैं कि भैया विक्री शरीर भी सुख का कारण, इंद्रिय का सुख हो। नारकियों के शरीर दुख का कारण नहीं। नरकी है ना पीछे 7 नरक, तो शरीर दुख का कारण नहीं, यानी अनिष्ट बुद्धि है वो दुख का कारण है, शरीर नहीं। शरीर में तो टुकड़ा कर देते थे, જેમ समझे શું કહેવાય મને पारो, पारा 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 में भिन्न भिन्न होता है, शरीर का पारा भिन्न भिन्न कटका हो जाता है, क्या क्षण में पछी एकठा हो जाता है। पर वो कोई संसार का नरकी का दुख का कारण नहीं। नारकियों के दुख का शरीर कारण नहीं। आत्मा स्वयं ही इष्ट अनिष्ट विषयों के वश,
ईश्वर ने विषय ईश्वर है नहीं, विषय तो ज्ञेय है। सारी जगत ज्ञान में ज्ञेय है, पण अज्ञानी आ ईश्वर ने अनिष्ट है सब मानकर ईश्वर निष्पणे प्रणमते हैं, ये दुख का कारण है। है आत्मा स्वयं ईश्वर निष्ठ विषयों के वश होकर सुख दुख की कल्पना मात्र बनते थे, कल्पना रूप से परिणमित होता है। वहाँ शरीर मेरी कल्पना मानते मिथ्या दृष्टि, मेरे सुख है मैं सुखी हूँ, ऐसी कल्पना परिणन करते हैं। शरीर कोई कारण है नहीं, तेरी विपरीत मानता कारण है विशेष कही। प्रवचन सार 67 गाथा। शिशावे 67 क्या कहते हैं? देखो, हम आत्मा स्वयं सुख परिणाम की शक्ति वाला होने से विषयों की अकिंचरता का बतलाते हैं। क्या कहते हैं कि आत्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये आनंद स्वरूप स्वयं अपने से प्रणीत हैं। विषयों का अवलंबन ले तो पण अपने से सुख रूप कल्पना से प्रणते हैं। विषयों किंचित कर कहीं काम करते नहीं। अने विषय सिवाय भगवान आत्मा अपना मुक्त अवस्था में आनंद रूपे प्रण करते हैं, तो पण कोई विषय के कोई पर पदार्थ निमित्त की अपेक्षा नहीं। क्या किया समझ में आया? ये कहते विशेष कहेगा, तिमिर हरा जय दिठी जनस्व दिवेण नथी कायवम तो सुखम स्वयं आधा विषया केम तत्कुवंती। जो दृष्टि प्राणी ने तिमिर हर दिखे तो कार्य छे नहीं दीपती, ज्या जीव स्वयं सुख परण में विषयों करे छे शू कहीं। टीका, जैसे किन्हीं निशाचर रात्रि में चालने वाला, निशा नाम रात्रि, चर नाम चालने वाला, उल्लू बिल्ली भूत रात्रि अंधकार में चलते हैं। नेत्र स्वयं ये अंधकार को नष्ट करने की शक्ति वाला होते हैं। उसकी नेत्र की शक्ति ऐसा है कि अंधकार का नाश करे, यानी कोई प्रकाश नहीं जरूर। बिल्ली उल्लू भूत इत्यादि चोर है बहुत, ये रात्रि आंखा बहुत प्रकाश है, कोई अंधकार में भी देखनी वस्तु। नेत्र स्वयं में अंधकार को नष्ट करने की शक्ति वाले होते हैं, इसलिए उन्हें अंधकार नाशक स्वभाव वाले दीपक प्रकाश आदि कोई प्रयोजन नहीं। अंधकार ना नाश करने वाला सूर्य के दीपक ने यानी जरूर नहीं, ये दृष्टांत। इसी प्रकार सिद्धांत, यद्यपि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव अनादि से विषय सुख के साधन ऐसी बुद्धि के द्वारा विषयों खाऊं पीऊं भोग विषय स्त्री का ये सब सुख का साधन है एम अज्ञानी मानकर बुद्धि के द्वारा व्यर्थ विषयों का अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म बात है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये विषय है, उसको अज्ञानी अवलंबते हैं। निरर्थक ये विषय कुछ उसको सुख कल्पना सुख की, इंद्रिय का सुख की कल्पना भी कोई विषयों नहीं कराते। पांच इंद्रिया विषयों में अज्ञानी अपने से मूंढ होकर सुख की कल्पना मानते हैं, विषयों कुछ करते नहीं।
हाँ हाँ हाँ। शरीर है, लक्ष्मी है, स्त्री है, आबरू है, वो सब विषय है। तो विषय कोई आत्मा को सुख उपजावे, सुख એટલે इंद्रिय का सुख, ये है नहीं। उसका अवलंबन लेकर अज्ञानी मानते हैं कि मेरे सुख की उत्पत्ति उससे होती है। हाँ हाँ हाँ, દીકરા હારા કોને કહેવાય? સુમનભાઈ દીકરો હારો કહેવાય? 8,000 પગાર એટલે આવે તો પગ દાબે મફત ને શું છે? દીકરા હારા એટલે ये विषय है। अज्ञानी अवलंबी ने मानते हैं कि मेरा દીકરા ठीक है, ऐसी कल्पना से सुख की कल्पना करते हैं, दुख है। समझ में आया? स्त्री अनुकूल है, शरीर सुंदर है, मांस हाड़का रूपाला है, ये तो पर जड़ है। अज्ञानी उसको अवलंबन लेकर मानते हैं कि उससे मेरे सुख होता है, इंद्रिय का, उससे होता ही नहीं। ये विषय का अवलंबन लेने से अपनी पर्याय में अपने से दुख की कल्पना होती है। ये तो दुख इंद्रिय का विषय, पर इंद्रिय का विषय अपने से मानते हैं। ये अवलंबन लेते उससे विषय का सुख आता है। ये अकिंचित करे, पर वस्तु अकिंचित कर, निमित्त अकिंचित करे बताते हैं। लड्डू, मिशुब, पैसा, स्त्री का शरीर, आबरू का શું કહેવાય? परमाणु पुद्गल, आबरू का पुद्गल परमाणु, एक अकिंचित करे, तेरे विषय का सुख की कल्पना में वो अकिंचित करे, ये कहीं कर सकते हैं? वो को अज्ञानी तो प्रसिद्धि करते हैं कि री भजित कहते हैं। दुनिया जड़ शरीर मांस हाड़का, स्त्री का शरीर मांस हाड़का, वो तो उसको अवलंबन लेकर मानते हैं कि मेरे उससे सुख है। वो सुख का कारण है ही नहीं। सुख है इंद्रिय का सुख हो, इंद्रिय का सुख है दुख है। पण एक पर पदार्थ अकिंचित करे, उसका इंद्रिय का विषय की परिणमन में पर वस्तु अकिंचित कर, निमित्त बिल्कुल करते नहीं उसको। समझ में आया? शरीर हाड़का मांस रूपाला हो, मांस आदि, तो उसमें भोग में ये कल्पना करते हैं कि आ ठीक है। ये तो अकिंचित करे, ये हाड़का मांस की कल्पना, सुख की कल्पना में अकिंचित करे। आखिरी बात है रणभाई, दुनिया की विरुद्ध है। આ બધા પૈસા વાળા જાણે પૈસા મને સુખનું કારણ એ ના પડતા એમ કે વસ્તુ का स्वभाव ऐसा कहते हैं यहाँ। परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देवना ज्ञान में आया, ऐसा हुक्म किया कि दुनिया 5 इंद्रियना विषयना अवलंबन लेकर ये जाने के विषय का कारण है, मेरे सुख की कल्पना का वो कारण है, ये मानकर पर का अवलंबन लेते हैं। पर ये अच्छा सच्ची बात है। संदीप भाई, છોકરા પંકજ હોશિયાર થયો ના દીકરાઓ થયો, મારે સુખનું કારણ ઇન્દ્રિયના વિષયનું સુખ હો, તેથી એ વિષયના સુખમાં પર પદાર્થ કિંચિત કરે। કોઈ પણ નહીં થતા, એ તો જડની પર્યાય જડશે તો ચલતી है। अरे जगत ने सत्य की खबर नहीं। अंधा अनादि से अंधा आंधड़ा, एक अब्जोपति करोड़ोपति आंधड़ा है। कहते देखो उल्लू ने बिल्ली
रात्रि को अपनी आंख में काम करते हैं, क्या उसको प्रकाश का दिए ने सूर्य की जरूर नहीं? ऐसे अज्ञानी पर वस्तु का अवलंबन लेकर मानते कि मरते सुख है ही, पर वस्तु किंचित करे। पर वस्तु कहीं ने सुख की इंद्रिय का विषय का कल्पना में ये पर वस्तु किंचित करे नहीं। समझ में आया? मानता मिथ्या ब्रह्म है अज्ञानी। मकान 5-25 लाख का हो, 70 लाख का मकान है, देखा नहीं आया। 70 लाख का मकान तो हम देखे हैं, आमोद का, मुंबई है, रमणीक भाई है ने, रौनक कंपनी, 5-6 करोड़ रुपया, एक 2 भाई છે। ये मकान होते 70 लाख का एक मकान हो, एक ही मकान 70 लाख का। धूल में सुख नहीं उसमें है, दरिया की हवा मिलने का ये नहीं। अज्ञानी पर विषय का अवलंबन लेकर पर से मेरे सुख दशा होती है, ऐसा किंचित कर पर वस्तु है कहीं करती नहीं। अज्ञानी अपने ही कल्पना से राग रूपे प्रणमते हैं। आंखों काम से सत्य वितराग मार्ग। यद्यपि अज्ञानी विषय सुख के साधन है, हमारा विषय सुख में इंद्रिय स्त्री का शरीर साधन है, पैसा साधन है, मेषुभ साधन है, रसगुल्ला साधन है। अनुकूल रेशमी कपड़ा, रेशमी गादली, ये मेरे विषय में अनुकूल है। वालों तो जड़ है, ये जड़ क्या करते हैं? वाली तो जड़, रेशमी कपड़ है तो जड़ है। ये जड़ उसको सुख का कल्पना कराते, ऐसा नहीं। अज्ञानी सुख की कल्पना करते हैं उसका अवलंबन लेकर, ये कुछ करते नहीं। समझ में आया? यूं में एक बार नहीं किया, वो मुंबई में છે ભાઈ અરુણભાઈ મણિભાઈ છે, એક 5-6 કરોડ રૂપિયા આગળ છે કોલાબાદ નહીં હે ઓર્કેસ્ટ્રાની ત્યાં હાર કરવા ગયા સાંજ को ને એ आगे है वो जमशेदपुर में हूँ, ताता नगर है, ताता नगर है, मुंडी में है ताता। त्या एक छोकरो बहु मांदो હતો बेचारा, बहुत प्रेमी, बहुत प्रेमी। हाँ है, શું નામ? વિજય કુમાર હતો ત્યારે આવતો, બહુ પ્રેમી બેચારા। પછી લગ્ન કિયા 12 માસ हुआ, એમાં કેટલી એવો માણસ મારો એવો મને શાસ્ત્રની પ્રેમ। તો અમારા શાંતાબેન હે ને, એના બેન નંદો થાય, નંદો મણિભાઈ કરીને છે, 5-6 કરોડ રૂપિયા, બહુ મુંબઈ છે, અરબસ્તાન में दुकान है, मोटी दुकान। તે ત્યાં હાર ગયા પછી એના જે મકાન હોય શું કહેવાય તમારા એ ફર્નિચરની મકાનમાં એકલા રેશમી પાથરેલા, ગાલીચા 5 પગમાં બધા કરાવે, 5 લાખના તો ફર્નિચર છે। તમારે 5-5 લાખનું મકાન છે એક રહેવાનું? સુના એ કે 3 ભાઈઓને 5-5 લાખનું મકાન રહેવાનું છે, બાપનું જુદું મકાન છે। પણ એ કઈ ધૂળ હે, એ કઈ સુકાકાર ઠંડી હવા આવે, બારણા ખુલ્લા હોય, હવા રેશમી ગાદલા, અને કેટલાક તો એવા માણસ હોય, નેમિચંદ પાટણી છે ને, એ તો બહુ સુમાળા માણસ ને, નેમિચંદ પાટણી ઉવે તો માણસ એને પંખામાં રાખે કુવામાં, હવા ખાય ત્યારે ઊંઘ આવે ને। નેમિચંદ પાટણી અરે નોકરીઓ ઉપરના ત્યાં બધે ઠેકાણ ક્યાં હોય?
આ તો બીજે ઠેકાણે જોયું તો મેં નજર એને હવા નાખે ત્યારે ઊંઘ આવે આમ હું આપણું શરીર अरे रे यार ये पंखा पंखा क्या करते हैं हम कहते हैं यहाँ स्त्री का शरीर किंचित कर उसको कल्पना सुख करने में है अज्ञानी सुख की कल्पना करते हैं मिथ्या भ्रांति भ्रांति से अनंत संसार बढ़ते हैं 4 गति में रुलने का भाव है उसका आखिरी बात है भाई दुनिया माने के सुखी थी है प्रभु के महादुखी है तुम नरेंद्र भाई दुनिया से विरुद्ध है बात यहाँ की पंचमाला के बात हम साधु कहते हैं पंचमाला का मुनि पंचमाला को कहते हैं पंचमाला लोग है ना अमरचंद्राचार्य की टीका है तो अभी 1000 वर्ष पहले हुआ है ये पंचमाला का जीव को कहते हैं मकान के चौथे काल का अभी इनका है नहीं मकान 80 लाख का मकान अभी क्या तुम्हारा 6 लाख का भी क्या है क्या 10 वर्ष के पहले का है शेष रहते 6 लाख का मकान है उसका धूड़ है बड़ी यहाँ तो कहते हैं અને જ્યાં સૂતે ત્યાં તો દવા રાખते बहुत हीरानी भस्मनी फलाने ढीकड़े फीकड़े एक फिर हम निकले थे क्या मकान उतरे थे ने तो मकान उतरे तो त्या सेठ ना सूते त्या निकले थे बड़ी दवाओं पड़ी थी बहुत ये दवा कुछ आत्मा को इंद्रिय का विषय में कंचित कर कहीं काम नहीं करते दुनिया से विरुद्ध है भाई ये कहते देखो अज्ञानी विषय सुख के साधन है ऐसी कल्पना है उसकी ऐसी बुद्धि के द्वारा व्यर्थ ही विषयों का आश्रय करते हैं ये निमित्त का स्त्री का शरीर का पैसा का मकान का गाडला रेशमी गाडला का मुफ्त नो अज्ञानी आश्रय करते हैं वो कोई इंद्रिय का सुख में बिल्कुल किंचित कर है अकिंचित कर है કેમ છે આ રાયચંદ ભાઈ હે એને તો 2 જણા છે બાઈડ બેડ 2 છે બસ લાખો રૂપિયા કેટલા લાખો ગણાય છે સુખ છે ને એમાં કઈ આ તો દ્રષ્ટાંત છે કરોડોપતિ અબજોપતિ થયા ને એવું આપણે શાંતિલાલ પ્રસાદ ગોવામાં પાનસણા વાળા જોરાવર ગામ ગુજરી ગયા મને 5.5-2 વર્ષ 2 અબજ 40 કરોડ રૂપિયા પાનસણા गोवा में है गोवा 2 अरब 40 करोड़ और 60 लाख का 3 मकान 40 लाख का एक 10 लाख का दूसरा 10 लाख का दूसरा मरी गयो આવી ને અહીંયા મુંબઈ આવ્યો એની વહુને આ થઈ ગયો હેમરેજ થઈ ગયો ને અસાદ મુંબઈ આવ્યો 1.5-2 વર્ષ થયા 2 વર્ષ થી એ બાઈ તો હતી 1000 શું કહેવાય હેમરેજમાં અસાધ્ય એમાં આને દુઃખ ઉપજ્યું રાત્રિમાં કાંતિભાઈ હતા રેવાય છે મુંબઈમાં છે શ્વેતામાનું મંદિર છે ને એના પછી મકાન છે ને ગયા ત્યાં ઘેરી રેવાય છે કાંતિભાઈ ડાક્ટરને બોલાવો પણ એના તો ડાક્ટર બીજાને બોલાવ્યા બોલાવો એમ કીધું જ્યાં ડાક્ટરને વેવા કે હું જાઉં કાંતિભાઈ કે ત્યાં તો અહીં તો દેશ છૂટી ગયો 2 અબજ 40 કરોડ શું 40 કરોડ ધૂળ માથી ના ઠગવા પ્રાર્થના કરે એની પાસે હવે એમ શાસ્ત્ર એમ કહેતે પાપ કરીને बहुत ભેગા किया હવે मेरा मर जाता हूँ क्या जाऊंगा तुम लक्ष्मी को साधन दे
કે છે કે પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો જે શબ્દો છે, રૂપ છે, ગંધ છે, ये रूप है सुंदर शरीर, वो तेरे को राग नहीं उपजाता है। तुम राग करते हैं ये चीज तो अकिंचित कर है। रूप तो परद्रव्य है, परद्रव्य तेरे राग क्यों उत्पन्न करावे? एम शरीर सुंदर स्पर्श इंद्रिय का विषय स्पर्श करे तो इस स्पर्श तेरे को राग नहीं उत्पन्न करते, ये तो जड़ है, अकिंचित करे। अज्ञानी उसका अवलंबन लेकर दे आश्रय करते हैं अज्ञानी है भाई अंदर। तथापि संसार में संसार में तो भी अज्ञानी अपना सुख रूपी परिणमन करते हैं। अज्ञान में सुख એટલે दुख, અને मुक्ति में मुक्त दशा में भी आत्मा अपने से आनंद रूप परिणमन होता है। कोई दूसरा कोई विषय उसको है नहीं। समझाय છે કાંઈ? બે વાત किया, संसार में या मुक्ति में। संसार दशा में एक इंद्रिय से मानकर सर्वार्थ सिद्धना देव सुधि हो तो ही जी सुख कल्पना करते हैं, पर का आश्रय है तो पर किंचित सुख उपजाते नहीं, विषय का सुख हो। मानते हैं कि मेरे ठीक है, मुझे रेशमी ताप बहुत गर्मी हो तो ठंडा पानी लगावे, पोता पोता पानी का ठंडा, बर्फ मूके, बर्फ बहुत गर्म बर्फ मूके। ये क्या चीज है? तो ये तो छूते नहीं तेरे शरीर को। ये डॉक्टर ने भान के दी, डॉक्टर बड़ा मूंड है। मैं दवा करूं तो मिटेगा, ढूंढे नहीं मिटे। तो उसकी पर्याय झड़की होने वाली हो तो होती है, तेरे से क्या दवा से होती है? इंजेक्शन लगा दे तो ये आश्रय करते उसका, वो कोई अंदर कल्पना तुम करो तो वो कोई कारण है नहीं। मेरे इंजेक्शन लगाया था, श्वास बैठ गया और बाबा श्वास पवन की जरूरत नहीं, पवन देते नहीं उसमें, ऑक्सीजन देते हैं ना दवा में, डॉक्टर में ऑक्सीजन का डब्बा होता है ना बड़ा, देखा है, हम सब देखा है। तो अपना बल्लू भाई है राजकोट वाला, मुंबई, 60 लाख का मकान વેચે ને 60 લાખ 20 લાખ 50 લાખ આપીને એના મોટી દવાખાને ગયા હતા, રામજીભાઈ હતા, એ દવા બધી ઓક્સિજન કરે, 3 બાટલા ભરેલા મોટા બાટ, કોઈને ગવા નથી, એને અડવા નથી, પાણી ને ચોખ્ખું ઓક્સિજન, એટલે આ શ્વાસ ન આવી શકે ऑक्सीजन। ये विषय का अवलंबन लेते हैं, मानते हैं कि मेरे ऑक्सीजन से मेरे श्वास ठीक हुआ। श्वास बंद हो जाता है ना, नली में बंद हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन करते हैं श्वास। तो जड़ है, तुम आश्रय करके मानते हैं कि वो उसके काम से मेरे यहाँ ठीक हुआ, कुछ है नहीं। गजब बात है। संसार झूठा है सारा। हम किसी संसार में रहते हैं, दिखते हैं, सम्यक दृष्टि जी संसार में दिखते हैं, पर विषय में सुख ऐसा नहीं मानते। राग आता है तो राग मेरी कमजोरी से है, मैं तो उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ। राग मेरी चीज नहीं और राग में सुख नहीं, और राग पर के कारण से हुआ ऐसा है नहीं। सनवे हजारी स्त्री चक्रवर्ती को संकीर्ति है, आत्मज्ञानी है, ये नहीं कुछ सुख का विषय है नहीं, ये सुख का साधन है ही नहीं। सुख तो मेरे आत्मा में है, मेरी कमजोरी से राग आ जाता है तो मैं उसका जानने वाला, देखने वाला हूँ। जो ना छोटा भाई नंद बहू से थी,
બહુ નબળું છે છોટા ભાઈ, छोटा वाला रायचन आज ही गया था, नंबर बहुत अच्छा था। चिंतन 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 पहले से घना वर्षों से शास्त्र का चिंतन मन बहुत, अभी कोई सुनावे तो पण ठीक पड़तो नहीं। आप भजन भजन श्रीमद आत्मा से चिंतन करते हैं बस अपने में अंदर। छोटा वाला रायचन है स्थिति आखिर क्या है सिद्ध, तो उसके कहीं दरकार नहीं, उसकी दरकार नहीं। अपने आत्मा में ज्ञायक हूँ ज्ञायक हूँ ज्ञायक हूँ, जानने वाला मैं हूँ, बस वो चिंतन करते हैं। आज गए थे 2-4 दिन पहले गए, स्वर्ग में जाने वाला है। चिंतन 40 वर्ष यहाँ है, चिंतन मनन बहुत, शास्त्र का वांचन में प्रेम बहुत, बहुत रुचि। ये छूटेगा कि स्वर्ग में जाएगा। हाँ, मेरे पैसे कहना था कहीं पर न कह सका कि स्वर्ग में जाइन भगवान पास जाओ। भगवान बिराजते हैं तो न कहीं गए थे 11:30 बजे, पर चिंतन करते बस बैरा बैरा छोटा जाने के। अपना अभ्यास करता हो तो उसमें पद की दरकार है ही नहीं कहीं। अनुकूलता हो कि दवा दवाई दवा दवा कहे तो ना पड़ते हैं। अहिया से जाओ तो मैं ऑपरेशन करो, अहमदाबाद में जाएगी, मेरे काम नहीं, न्याय की जाने का पाप मेरे नहीं होता। ऑपरेशन करवाने के कहीं डॉक्टर ने शंका पड़ी है कि शू कहेवाय किसमें कैंसर शू कहेवाय कैंसर, તમારું નામે ભૂલી જાય રોગ कैंसर છે અંદર કે હવે कैंसर હોય કે पेंसर હોય ગમે તે હોય છે। जड़नी जी अवस्था जिस समय होने वाली होगी इन्हें कोई रोक सके नहीं। उसके राख सके नहीं, उसको रोक सके नहीं, उसको टाल सकते नहीं। अज्ञानी भ्रमणा में ऐसे मान के ऐसा मैं करूं ऐसा मैं करूं ऐसा मैं करूं। प्रभु तो ज्ञान स्वरूपी चिदानंद प्रभु है ने। ये तो कोई पण प्रसंग हो तो जानने देखने का स्वभाव करने वाला है। हाँ, वो कहते हैं संसार में हो तो भी कल्पना विषय सुख की अपने से करते हैं, विषयों से नहीं। विषय का आश्रय से है अवलंबन, उससे मेरे में सुख की कल्पना अज्ञानी मानते हैं, उससे है नहीं। और मुक्ति में तो अपना सुख अपने से है दो ही, संसार में या मुक्ति में। सिद्ध सिद्ध नवो सिद्धानम, सिद्ध दिशा जहां होती है आत्मा का आनंद का अनुभव करते करते स्व संवेदन निजानंद का अमृत का सागर प्रभु, उसकी रुचि में परिणमन करते करते आनंद का परिणमन करते करते पूर्ण आनंद की प्राप्ति मुक्ति में होती है। ये मुक्ति में आनंद है, कोई पर के कारण है नहीं, यहाँ तो शरीर नहीं, वाणी नहीं, इंद्रिय नहीं, कुछ नहीं। अपना आत्मा का आनंद पणे प्रणमते। सीध समान सदा पद मेरो, मैं पण सिद्ध जैसा अनादि अनंत हूँ, ऐसे अंतर में दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। तब उसको आनंद का स्वाद आता है। ये आनंद का स्वाद का कारण में भगवान आत्मा है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि घृष्टाश्रम में हो, श्रावक हो, साचा सच्चा श्रावक। आ तो બધા વાડાના શ્રાવક है। आवज है श्रावक तो अपना अंतर आनंद में श्रवण वस्तु की क्या हो, श्रावक विवेक क्या हो, विवेक करके भिन्न राग से भिन्न क्या हो। शुभ ने अशुभ भाव,
तुम पाप की कल्पना है, उससे मेरी चीज भिन्न है। मैं तो सच्चिदानंद प्रभु त्रिकाल आनंद का नाथ हूँ। ऐसा राग से भिन्न पड़ा हो तो उसकी दशा में स्थिरता विशेष आती हो तो उसको सावक कहते हैं। सम्यक दर्शन में स्थिरता अल्प है अंदर, सावक पंचम गुण स्थान वाला होता है, विशेष है। અને मुनि होता है सच्चा संत, साचा संत हो। हाँ मुनि हो नग्नपणा ले न पंचमावर तो वो कोई धर्म मुनि है ही नहीं। अंतर का आनंद की दशा में उग्र प्रयत्न और स्वसंवेदन प्रचुर आनंद का वेदन हो, ये आनंद का वेदन करते करते मुक्ति हो जाती है। समझ में आया? मुक्ति में तो अपना आनंद सुख रूप परिणमन अपने से होता है। ये सुख में कोई पर कारण है? एक बात को यथार्थ बैठनी चाहिए ना, उल्टी बात बैठे अनादि से। ये क्या देखो, संसार में या मुक्ति में स्वयं सुख रूप परिणमन का अर्थ संसार में इंद्रिय का विषय में सुख रूप परिणमन और मुक्ति में अपना आनंद का परिणमन स्वयं करते हैं। पर का कोई कारण है? मानते हैं, हम किधर में सुख है ही नहीं, सुख है नहीं, पर मानते हैं कि मेरे आनंद लिया उसमें सुख है। वो ना पाते कि उससे सुख है नहीं थे, यही कल्पना के सुख से मान्य है। पराधीन ये तो दुखी है। पराधीन सपने सुख नहीं, ये तो कहते हैं नहीं, कहते हैं सपने सुख है। पराधीन तो राग के अधीन इंद्रिय का विषय के अवलंबन से अपने कारण से विकार का भाव होता है, उसको इंद्रिय का सुख मानते हैं। जहर है उसको सुख मानते हैं। अनादि से ऐसी मिथ्या भ्रांति है। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। 67મી ગાથાનો શેષ ભાગ આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું। હવે સુખધામ બોલીએ। जयते